Hi guys, a warm welcome to all of you in the today's session of our 21 days challenge, which has been ongoing for quite some time now for all of our three subjects. All of our three subject advanced accounting costing and FMSM ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ already 12 sessions till date ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ. Today is the 13th session for our subject advanced account in which we have been doing the accounting standards after completing all the chapters. So usually we are taking up 2 accounting standards a day so as to cover all the AS till the session number, that is day number 21. So if you have reached today's lecture, first of all please like the lecture, like the session, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟਸ ਲੈ ਲੈਣੇ which are going to be used in the today's session. And if you have not done the telegram channel, please don't do this mistake. It is going to be very heavy mistake. Go and subscribe the telegram channel, join the telegram channel, because lot of useful things keep coming on our telegram channel as well. Okay, so let's start with the today's session without wasting any further time. TRG 21 days challenge RSA, that is Rahul Chikha Academy, and आज day number 13th में we are going to talk about 2 AS number 9 revenue recognition, AS number 10 PPE. कुछ बच्चे जो नॉटी बच्चे हैं कहते हैं सर पप्पी, सर PPE मतलब पप्पी. हाँ भाई पप्पी, तेरे लिए पप्पी होगा. AS नंबर 9 एंड AS नंबर 10. AS नंबर 9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जैसा कि नाम से क्लियर है पुत्र, बात करता है रिकॉग्निशन की. किस चीज की? रेवेन्यू की, खर्चों की नहीं. कहता भाई जो रेवेन्यू है उसको कब रिकॉर्ड करना है, रिकॉग्नाइज कब करना है, उसके बारे में डिटेल टर्म्स एंड कंडीशन बताता है. और AS नंबर जो 10 है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, इसी AS के अंदर जितने भी आपके टेंजिबल एसेट्स हैं उन सब की बात की जाती है, एंड जो रिजल्टेंट डेप्रिसिएशन होती है उन सब की बात भी की जाती है. इट इज exactly contrary and opposite to AS number 26 which talks about the intangible assets and their amortization. तो AS number 10 PPE tangible fixed assets and उनकी depreciation की बात करता है. कुछ aspects हम प्रश्नों के द्वारा जो है आज के सेशन में इन दोनों ही AS के पुत्र देखेंगे. तो आइए जी आप करते हैं स्टार्ट. Zigato runs a food delivery business. क्या बात है, स्विगी प्लस जोमेटो जिगाटो. हाँ जी, तो जिगाटो runs a food delivery business. As per the arrangement, Zigato allows customers to order the food from local restaurants and is responsible for delivery of the food within the stipulated time. बिल्कुल नॉर्मल यही मॉडल चलता है. During a particular year, it collects the money on orders made online as under. तो कहते हैं किसी एक पर्टिकुलर का डाटा बता रहे हैं आपको, इसने कैसे पैसे इकट्ठे किए. टोटल प्राइस फॉर द फूड आइटम, जो फूड हम लोग ऑर्डर करते हैं 200 लाख रुपए उसके आए. डिलीवरी चार्जेस के नाम पर 60 लाख रुपए लिए. जब हम ऑर्डर करते हैं फूड तो डिलीवरी चार्ज नाम की चीज होती है, वो भी 60 लाख रुपए लिए. एक जीएसटी का अमाउंट लिया 40 लाख रुपए, और जिसके कारण टोटल हो गया जी 300 लाख. मतलब पूरे साल में 3 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया, जिसमें से 200 लाख यानी कि 2 करोड़ रुपए जो है वो प्राइस ऑफ द फूड आइटम है, 60 लाख डिलीवरी चार्जेस और 40 लाख रुपए का अमाउंट है जो जीएसटी के. तो कहते हैं Zigato received 300 lakh for the above order from customer and the orders were delivered to the customer in the stipulated time. ठीक है, वो हो गया उनका नॉर्मल बिजनेस मॉडल. नाउ इट आस्क्स अस how much revenue should be recognized by restaurant and how much revenue should be recognized by the Zigato for the year. सवाल उठा कितना रेवेन्यू आप रिकॉर्ड करोगे. सीधी सी बात है, जो पैसा फूड आइटम्स का है ये किसका है? क्या Zigato खुद फूड बना रहा है? नहीं, ये तो सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाकर बैठ गया, सर्विस प्रोवाइडर हो गया, एग्रीगेटर हो गया एक तरह से. ठीक है ना, सर्विस प्रोवाइडर बोलेंगे, एग्रीगेटर नहीं बोलते. 200 लाख रुपए का जो अमाउंट आपने पे किया, क्या वो Zigato को जाएगा? नहीं, ये पैसा तो रेस्टोरेंट्स का है, क्योंकि खाना तो उन्होंने भेजा बना के. तो 200 लाख रुपए का रेवेन्यू शुड बी रिकॉग्नाइज्ड बाय द रेस्टोरेंट. और जो 60 लाख रुपए की डिलीवरी चार्ज है, ये किसकी इनकम बनती है? ये बनती है जी Zigato की इनकम, क्योंकि ये लेना इनका हक है. डिलीवरी पर्सन लगाए हुए हैं और उनके बिहाफ पे डिलीवरी चार्ज कलेक्ट करते हैं और बाद में उनको सैलरी देते. तो ये मेन इनकम है किसकी? Zigato की. कहता जी जीएसटी भी है 40 लाख. जीएसटी किसकी इनकम है? ना तो रेस्टोरेंट की और ना ही Zigato की. 40 लाख रुपए जो जीएसटी है ये तो सरकार को जाएगा. इट इज नॉट द पार्ट ऑफ इनकम आइदर ऑफ द रेस्टोरेंट और ऑफ द डिलीवरी पार्टनर, दैट इज Zigato. आइए देखते हैं. कहते जी रिस्क एंड रिवॉर्ड एसोसिएट विद द फूड आइटम आर नॉट विद द Zigato. ऑब्वियसली when a customer has ordered a food item, whether the item will be prepared or not is the responsibility of the restaurant and not the Zigato. Similarly, the responsibility to deliver the food is with Zigato and the restaurant that does not undertake the responsibility for the same. Very much clear. Therefore, the restaurant undertakes the principal responsibility to prepare the food and ensure its quality. Zigato on the other hand is responsible to deliver the food. So Zigato is acting as an agent, hence it can only recognize the revenue relating to that activity, which obviously it does in the ordinary course of business. Therefore, we will say that revenue for Zigato is 60 lakh, whereas the revenue for restaurant will be rupee
200 लाख। और जहां तक बात बची जीएसटी की, it may be noted that the GST of rupee 40 lakh is a liability payable to the government, that is third party, hence it will not form part of the revenue either of Zigato either of the restaurant। जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, एग्जाम में बिल्कुल आने लायक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 हमारे सामने, एक और प्रश्न एएस नंबर 9 से। कहता है जी वाई लिमिटेड यूज्ड सर्टेन रिसोर्सेज ऑफ एक्स लिमिटेड। ठीक है, इन रिटर्न एक्स लिमिटेड रिसीव्ड 10 लाख एंड 15 लाख। 10 lakh has interest and 15 lakh has royalty from Y limited during the particular year। तो X limited के कुछ रिसोर्सेज हैं, Y ने यूज करे, तो ऑब्वियस सी बात है जो रिसोर्सेज यूज कर रहा है इट विल मेक द पेमेंट टू दैट पार्टी जिसके रिसोर्सेज थे। तो इसने पेमेंट करी Y ने X को, और X को मिली। हम बात कर रहे हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू किसका है? एक्स का, तो हमें एक्स की तरफ फोकस करना है, वाई को छोड़ दो, वाई के लिए तो पेमेंट थी। एक्स लिमिटेड के लिए क्या है? रेवेन्यू है। कितना? कहते जी जो 10 लाख रुपए है वो तो मिला इंटरेस्ट का, और जो बचे 15 लाख रुपए ये मिले इसको रॉयल्टी के। ठीक है ना, तो हमसे पूछता है कि भैया तुम बताओ रिक्वायर्ड टू स्टेट वेदर एंड ऑन व्हाट बेस दीज रेवेन्यूज कैन बी रिकॉग्नाइज्ड बाय एक्स लिमिटेड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन डिटेल में बात करता है इन चीजों की, जहां पर एंटरप्राइज के रिसोर्सेज को और यूज करता है, वहां पर 3 चीजों की बात करते हैं, एस 9 इंटरेस्ट, डिविडेंड और रॉयल्टी। अब डिविडेंड तो इस प्रश्न में है नहीं तो उसको छोड़ दो। इंटरेस्ट और रॉयल्टी पर अगर आए तो इंटरेस्ट कैन बी रिकॉग्नाइज्ड एज योर रेवेन्यू ऑन अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, एंड जो रॉयल्टी है उसका आपको एग्रीमेंट देखना पड़ेगा, एक्रूवल बेस पर आप उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हो। मतलब फाइनली आपको पेमेंट उसकी कब मिली, एक्सप्रेसली आपके अकाउंट में कब पहुंची, वो मैटर नहीं करता है। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। So as per AS 9 on revenue recognition, revenue arising from the use by others of enterprise resources yielding interest and royalty should only be recognized, पहले तो मेन कंडीशन लिख दें, when no significant uncertainty as to measurability और collectability exist। मतलब कोई अनसर्टेनिटी नहीं होनी चाहिए कि कितने रुपए का है या कलेक्ट होगा कि नहीं होगा। अगर ये कंडीशन पूरी होगी तो उसके बाद आप रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कर सकते हो। किस बेस पर? एज फॉलोज। पहले आ रहा है जी इंटरेस्ट ऑन अ टाइम प्रोपोर्शन बेसिस, टेकिंग इनटू अकाउंट कितना अमाउंट आउटस्टैंडिंग है और क्या रेट एप्लीकेबल है। Therefore X Limited should recognize the interest revenue of 10 लाख। तो आपका ईयर एंड हो गया 1-2 में, उसके लिए आपको पेमेंट मिली है, उसके लिए पेमेंट मिलेगी, मतलब आपने अर्न कर लिया है तो आप उसको रिकॉर्ड कर सकते हो, सिंपल। एंड जहां तक रॉयल्टी की बात है, रॉयल्टी इज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द accrual basis in accordance with the terms of the agreement। X Limited therefore should recognize the royalty revenue of 15 लाख। तो आपको एक्रू अगर हो चुका है, चाहे मिला है या नहीं मिला मैटर नहीं करता, अगर एक्रू हो गया है तो आप उसको भी अपने अपने अकाउंटिंग ईयर में रेवेन्यू रिकॉर्ड कर सकते हो जी। बहुत ही आसान, बहुत ही मजेदार। फर्दर क्वेश्चन रिलेट्स टू द AS नंबर 10। क्वेश्चन सेज ओमेगा लिमिटेड contracted with the supplier to purchase the machinery which is to be installed in its one department in 3 months time। एक सप्लायर को इन्होंने पकड़ा, 3 महीने में मशीनरी इंस्टॉल करानी है इनको। स्पेशल फाउंडेशंस वर रिक्वायर्ड फॉर द मशीनरी विच वर टू बी प्रिपेयर्ड विद इन द सप्लाई लीड टाइम। लीड टाइम का मतलब हम कॉस्टिंग में पढ़ते हैं, जब आपने ऑर्डर किया से लेकर जब तक वो आएगा। तो क्वेश्चन ने यहाँ पर क्लियर कर तो दिया कि भाई 3 मंथ का टाइम है, यही 3 मंथ आपका लीड टाइम है। कहता उतने समय में आपको क्या करना होगा, कुछ फाउंडेशंस प्रिपेयर करनी है। मतलब जहां पर आप एसेट रखोगे तो कुछ आपको जो है एरिया डिमार्केट किया है, वहां पर कुछ फाउंडेशन, कुछ बेस बनाना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन सेज कॉस्ट ऑफ द साइट प्रिपरेशन एंड द लेइंग फाउंडेशन वाज 1,40,000। क्या लगता है क्या ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनेगा? शुड इट बी कैपिटलाइज्ड? डेफिनेटली यस। These activities were supervised by a technician during the entire period who is employed for this purpose at a salary of 45,000 per month। तो जो आपने स्पेसिफिकली इस पर्पस के लिए इंजीनियर एक सुपरवाइजर हायर किया है, उसकी 3 महीने की जो भी सैलरी होगी वो भी आपको चार्ज करनी पड़ेगी। 45,000 पर मंथ है पुत्र, आप 3 नाल गुना करके उन्होंने ले लेना है। The machine was purchased at rupee 1,58 lakh and 50,000 transport charges were incurred to bring the machine to the factory site। ये भी आएगा परचेज प्राइस, और जो भी आप खर्चा करते हो टू ब्रिंग द एसेट टू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन वो भी आएगा। बेसिकली तो इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट हो गई। आर्किटेक्ट वाज अपॉइंटेड एट अ फी ऑफ rupee 30,000 टू सुपरवाइज द मशीनरी इंस्टॉलेशन एट अ फैक्ट्री साइट। जिस दिन मशीनरी फाइनली इंस्टॉल हो रही है तो आपने एक आर्किटेक्ट हायर किया जिसको 30,000 रुपए देना है, वो उसकी सुपरविजन में सारा काम होगा कि भाई बढ़िया तरीके से हमारी मशीनरी लग जाए, इंस्टॉल हो जाए और उसका चलने लगे। यू आर रिक्वायर्ड टू असर्टेन द अमाउंट एट विच द मशीनरी शुड बी कैपिटलाइज। तो जितने भी पॉइंट हमने पढ़े हैं ये सब एक एक करके हमने ऐड कर देने, कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं था जो एक्सक्लूजन वाला हो। आइए जी फॉर्मली इसका उत्तर देखते हैं कि एग्जाम में आपको किस तरीके से रिप्रेजेंटेशन करनी है। सो हम कह रहे हैं स्टेटमेंट शोइंग कैपिटलाइजेशन ऑफ कॉस्ट्स एज पर AS नंबर 10। सबसे पहले
कॉस्ट ऑफ साइट प्रिपरेशन आ गया जी 1,40,000, फिर टेक्नीशियन की सैलरी आ गई 45,000 पर मंथ और 3 महीने के लिए इसने काम किया 1,35,000। परचेज प्राइस आ गया आपका 1,58,00,000। फिर आ गया जी ट्रांसपोर्ट चार्ज, ब्रैकेट में हमने इनके टेक्निकल नेम भी लिखे हैं जो कि AS10 में दिए गए हैं। ट्रांसपोर्ट चार्ज इसको क्या कहेंगे, इनिशियल डिलीवरी कॉस्ट, इट इज वेरी मच अ पार्ट ऑफ कैपिटलाइजेशन। एंड आर्किटेक्ट फी, दिस रिप्रेजेंट्स द प्रोफेशनल फीस जो आपने पे किए 30,000। तो जब आप इन सबको टोटल करते हैं 1,61,55,000 आता है। तो दिस इज द अमाउंट जिस पर आपको अपने पीपीई को कैपिटलाइज पुत्र करना है। ठीक है जी, तो यो आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। आओ थमनु अगले क्वेश्चन पर लेकर चलूं, अगले क्वेश्चन पर लेकर चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर जी प्रॉपर्टी कॉस्टिंग ₹10 लाख इज बॉट इन द ईयर 2001। आपने एक प्रॉपर्टी खरीदी 10 लाख रुपए की। इट्स एस्टिमेटेड टोटल फिजिकल लाइफ 50 साल है। हाउएवर द कंपनी कंसीडर्स इट लाइकली दैट इट विल सेल द प्रॉपर्टी आफ्टर 20 ईयर। कहते हैं लाइफ तो 50 है, हम 20 साल बाद बेच देंगे। तो सीधा से यहां तक ये मतलब है कि आप 20 साल में डेप्रिशिएट करिए इसको। एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू इन 20 ईयर्स टाइम बेस्ड ऑन 20x1 प्राइस जो आपने करंट ईयर है उसके हिसाब से देखें। कहता दो केस हैं, पहला केस हम मानते हैं कि 10 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू होगी और केस भी कि 9 लाख की होगी। यू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। बड़ा ही आसान है। डेप्रिसिएशन के लिए क्या किया जाता है जी, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइड बाय, नॉर्मली हम लेते हैं यूजफुल लाइफ, लेकिन क्योंकि आप 20 साल में बेच रहे हो तो आप 20 साल ही कंसीडर करते हुए चलेंगे। अगर आप 10 लाख का लिया और 10 ही की स्क्रैप वैल्यू है तो आपका डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना हुआ, 0। तो पहले केस में तो डेप्रिशिएशन बनेगी नहीं, और दूसरे केस में कितनी बनेगी, 10 लाख माइनस 9 लाख 1 लाख। उसको डिवाइड करोगे जी, आप 20 साल तक रखने वाले हो अपने पास, डिवाइड बाय 20, तो आपका उत्तर आ जाएगा इसमें 50,000, 50,000 भी नहीं 5,000 रुपए आ जाएगा। आई जी, कंपनी कंसिडर्स दैट द रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द बैलेंस शीट विल बी इक्वल टू द कॉस्ट। 10 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू है और 10 लाख ही की कॉस्ट है, तो डेप्रिशिएबल अमाउंट है ही नहीं। देयर इज देयरफॉर नो डेप्रिशिएबल अमाउंट एंड ऑब्वियसली द डेप्रिसिएशन विल बी 0, तो डेप्रिसिएशन 0 बनेगी। दूसरे केस में कंपनी कंसीडर्स दैट द रेजिडुअल वैल्यू बेस्ड ऑन प्राइसेस प्रिवेलिंग एट द बैलेंस शीट विल बी ₹9 लाख एंड डेप्रिशिएबल अमाउंट कितना होगा। डेप्रिशिएबल अमाउंट का मतलब होता है ओरिजिनल कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू। आपका ओरिजिनल कॉस्ट है 10 लाख, रेजिडुअल वैल्यू 9 लाख, तो 1 लाख रुपए का पुत्र डेप्रिशिएबल अमाउंट बन गया। और इसको जब डेप्रिशिएट करोगे स्ट्रेट लाइन बेस पर, तो 1 लाख डिवाइड बाय 20 जब करोगे आपका अमाउंट कितना आ जाएगा जी, 5,000 रुपए। ये आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट पुत्र बनेगा। आई होप दिस इज अगेन क्लियर टू ईच एंड एवरीबडी। नाउ लेट अस सी सर्टेन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। अच्छा जी, साथ में बता दूं, कई बार आप बच्चों में से किसी को लग सकता है, कई सारे बच्चों को लग सकता है इसमें क्या है कि यार ये वाले सेशन क्या कोई यूज है, छोटे छोटे सेशन है, कोई सेशन 30 मिनट 25 मिनट 20 मिनट 15 मिनट में भी कई सेशन खत्म हो जाते हैं, तो इससे सीखने को क्या मिलेगा। अब आप बस इतना ध्यान रखो, आप किस बंदे का देख रहे हो सेशन, राहुल गर्ग का। राहुल गर्ग कौन है, अगर मैं सिंपल पूछूं, भाई तुम उस बंदे से पढ़ रहे हो जिसने 5 बार रैंक लिया है। जिसने 5 बार रैंक लिया हो ना, एक बार भी जो ले लेता है वो ना बड़ी बड़ी बातें करता है टाइम मैनेजमेंट के बारे में। और आपके सामने वो बंदा जिसने 5 बार रैंक लिया है। और टाइम मैनेजमेंट मेरी फर्स्ट डे से, जब से मैं एज अ स्टूडेंट इस कोर्स में एंटर हुआ था 2004 में, उससे पहले भी स्कूल में थे, लेकिन चलो इन कोर्स की ही बात करते हैं क्योंकि आप सीए पढ़ रहे हैं मुझसे, ठीक है ना। तो टाइम के प्रति मैं हमेशा पुत्र ध्यान रखता हूँ। मैं चाहे अपना रेगुलर बैच लूँ, चाहे फास्ट ट्रैक लूँ, चाहे यूट्यूब पर मैराथन लेता हूँ या फेस टू फेस पूरे भारत भर में मैराथन करता हूँ, एक ही एम रहता है कि कम से कम समय में सबसे ज्यादा कैसे मैं आउटपुट दे सकूं, कैसे मैक्सिमम नॉलेज डिलीवर कर सकूं। ये जो सेशन है ना, जो मान लो मेरा कोई 15 या 20 मिनट का सेशन है, कोई और टीचर इस सेम चीज को कराने में 40 से 50 मिनट भी ले जाएगा। मेरा वो एम नहीं है। मुझे पता है सबसे जरूरी अगर है कोई चीज तो वो है टाइम। हर इंसान के लिए आज के जीवन में आप किसी से पूछो ना, सिर्फ टाइम की कमी है। और आप तो सीए के स्टूडेंट हो, आपके पास तो वैसे इतना सारा सिलेबस, इतने सारे सब्जेक्ट हैं, राइट। सो टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। मेरा कोई पर्पस नहीं है कि मैं टाइम पास करूं, ये करूं वो करूं। मैं सेशन बनाने आया हूं, मैंने नोट्स बनाए हैं, मैं बना रहा हूं, मैं पढ़ा रहा हूं, बात खत्म होगी। आई नो अटेम्प्ट, हर अटेम्प्ट गोल्डन अटेम्प्ट है एंड यू हैव टू गिव योर बेस्ट। और वो तभी हो सकता है अगर आप टाइम के हिसाब से सारी चीजें करो। सो वेस्टिंग द टाइम इज नॉट माई पर्पस, ठीक है ना। और दूसरा, हमने पूरे सब्जेक्ट को 21 पार्ट में बांट दिया। अब अगर मैं 21 पार्ट में ना बांटकर एक ही सेशन ले लेता तो सोचो कितने घंटों का ये सेशन बनता। 6 घंटे के आसपास का सेशन बन जाता। फिर बच्चे कहते हैं अरे क्या हुआ था सर ने ना 6 घंटे का सेशन, चलो देख कर आते हैं। लेकिन कन्वीनियंस के लिए उसको छोटे छोटे पार्ट में किया, सो दैट आप डे टू डे मेरे साथ जो है चलते रहो और सभी की हेल्प हो जाए, ठीक है ना। तो चलिए, तो आप डेफिनेटली इन सेशंस को देखिए, बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं। और अपने जूनियर्स फ्रेंड्स वगैरह को भी डेफिनेटली रिकमेंड कीजिए कि भाई फ्री में राहुल सर इतना कुछ कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो भी आकर देखें। दे विल डेफिनेटली गेट अ किक
एंड स्कोर वेल इन द अपकमिंग एग्जामिनेशन। ठीक है जी, आइए कहता जी विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस क्वालिफाई एज द रेवेन्यू फॉर मैसर एबी एंटरप्राइजेस। कहता बताओ इनमें से रेवेन्यू क्या होगा। ऑप्शंस देखते हैं। सेल ऑफ रुपी 20 लाख अंडर कंसाइनमेंट सेल, ना 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 ना, कंसाइनमेंट सेल अगर तुमने करी है वो सेल नहीं होती, जब कंसाइनी आगे बेचेगा तब सेल मानी जाएगी। सेल ऑफ एन ओल्ड मशीन अमाउंटिंग टू 5 लाख, इसकी भी बात नहीं करता हमारा एएस नंबर 9। वो तो बात करता है कि आप जो ऑर्डिनरी एक्टिविटी करते हैं ना, जो आप मेन बिजनेस करते हैं, उससे जो पैसा आता है ग्रॉस इनफ्लो, उसकी बात हम करते हैं रेवेन्यू में इस पर्टिकुलर एएस के अंदर ही। तो ओल्ड मशीन है तो फिक्स्ड एसेट बेचा आपने कोई। तीसरा, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू कस्टमर इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एंड द सेल्स रिकॉर्डेड इज 50,000। हाँ ये हुई ना बात जी, ये आपका करेक्ट आंसर है। फिर कहते हैं सेल ऑफ 25 लाख अंडर कंसाइनमेंट, ना ना तुम भी नहीं हो। तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता जी एज पर एएस नंबर 10 पीपीई विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट इज नॉट इंक्लूडेड इन द कैरिंग अमाउंट ऑफ एन आइटम ऑफ पीपी। कहता है इनमें से कौन सी ऐसी चीज है जिसको आप अपने पीपीई की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। देखें, कहता जी साइट प्रिपरेशन कॉस्ट, इसको तो बनाएंगे। कॉस्ट ऑफ रीलोकेटिंग तुम्हें नहीं बनाएंगे। इंस्टॉलेशन एंड असेंबली कॉस्ट डेफिनेटली बनाते हैं। एंड इनिशियल डिलीवरी एंड हैंडलिंग कॉस्ट, इसको भी हम बनाते हैं। तो रीलोकेशन की जो कॉस्ट है AS10 में स्पेसिफिकली लिखा है कि इसको हम AS10 में नहीं लेकर जाएंगे, मतलब कैपिटलाइजेशन जब करेंगे आप अमाउंट की, तो रीलोकेशन के खर्चे को ऐड उसमें मत करना। तो करेक्ट आंसर है पुत्र ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दें जी। depreciable amount of an asset should be allocated on a systematic basis over its। फर्स्ट ऑप्शन कहता है जो भी डेप्रिशिएबल अमाउंट है उसको जब बांटोगे सिस्टमैटिक बेस पर, AS10 क्या बोलता है कौन सी लाइफ में बांटना, टोटल लाइफ या यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ या रेजिडुअल लाइफ। अब सारी ऑप्शंस ना बच्चों को इसमें एक जैसे लगते हैं, मतलब सभी ऑप्शन लगता है कि यार ये भी ठीक है वो भी ठीक है, लेकिन जो कतई ठीक नहीं है, एक तो टोटल लाइफ और रेजुअल लाइफ, ये तो सबको पता है। अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं सर यूजफुल लाइफ या इकोनॉमिक लाइफ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है, जो AS10 की वर्डिंग है, दैट इज द यूजफुल लाइफ। तो ये आपका करेक्ट आंसर पुत्र बनना चाहिए कि डेप्रिशिएबल अमाउंट जो उसको सिस्टमेटिक बेस पर बांटना है ओवर द यूजफुल लाइफ। ठीक है जी, तो आज के सेशन में भी हमें आ गया मजा, और मुलाकात करेंगे अगले सेशन में पुत्र। तब तक के लिए